All of Ayodhya is today decked up. The Ram Lalla idol has been installed in Garbhagriha, the Sanctum Sanctorum, and the countdown is on for the Pran Pratishtha. But the occasion has also brought out the most beautiful irony in some people's politics. Prime among them is the Samajwadi Party. For days, Akhilesh's party has ducked the 1990 question and claimed that they are as big a Ram Bhakt as any. But the ghost of politics of Mulayam Singh Yadav can't be shaken off so easily. When Samajwadi Party leader and Mulayam Singh's brother Shivpal Yadav was asked why his government opened fire on car sevaks in 1990, he said, "What's wrong? It was done to save the constitution." The irony that in the very next breath he says that he too is looking forward to the Ram Mandir and that he will visit the Ram Mandir at the first instance after Jan 22nd. संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथा स्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राम मंदिर कब जाएगा और कितने लोग जाएंगे आपके साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में? 22 के बाद हम लोग मैं परिवार के जाएंगे। The same people who did everything they could to stifle the Ram Janmabhoomi movement are today staking claim to the same Ram temple that came from that movement. Today, they say Ram Mandir sabka hai. And this argument justifying the firing on car sevaks on the 30th of October 1990 has found favor across the opposition alliance. Leaders from Samajwadi Party, RJD, even Shiv Sena say that 16 people had to be killed because it was the need of the hour. देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथा स्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। जब भी कोई भीड़ उग्र रूप धारण करता है और कानून को हाथ में ले लेता है तो बल प्रयोग स्वाभाविक तौर पर की जाती है। और जब जरूरत आन पड़ती है शासन को कि स्थिति को नियंत्रण में लेना है तो हवाई फायरिंग भी होती है। तो शासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, तो उस कर्तव्य का निर्वहन के संदर्भ में अपनी उन्होंने बातें कही। सबका योगदान है, मैं तो मानता हूँ मुलायम सिंह यादव का भी योगदान है। अगर वो गोली नहीं चलाते तो आंदोलन इतना बढ़ता नहीं। And yet these netas don't bat an eyelid before claiming that they are the real bhakts, that they follow the footsteps of Lord Ram, that they practice the true essence of Hinduism. So what if their party members question the need of a temple? So what if they say that Jan 22nd spells the beginning of Bure Din for the backwards and tribals of India? So what if they call Ram Lalla idol doll in a tent and escape without consequences? And so what if they call a bloodbath the need of the hour? Aaj sab Ram Bhakt hai. கலைஞர் ஏற்கனவே சொன்னார், எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க கிடையாது. அங்கே கோயில் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசூதியை இடிச்சிட்டு அங்கே கோயில் கட்டினது தான் எங்களுடைய எங்களுக்கு அந்த உடன்பாடு கிடையாது. நம்முடைய பொருளாளர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் ஒன்றாக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோம். ರಾಮ ಮಂದಿರಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಕೇಳ್ರಿ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಶಾಲೆಗಳು ಕಟ್ಟಿವಿ, ದವಾಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೋದು. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಬಿ ಮಸೀದಿ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ, ಇವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋರು. रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहाँ खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। Well, this brings us to some very simple questions. The big questions are, if Shivpal Yadav stands by his decision of firing on car sevaks, are the allies justifying it? Also, how are those who are justifying the bloodbath calling themselves Ram Bhakt? Or is this a clever politics? Is this a smart strategy of the opposition where they want to keep the Bhakts happy and also those happy for whom they fired on the car sevaks? Let's open this up, this special edition of National Debate. We have our guests here with us on the spot in Ayodhya. We are joined by Alok Awasthi, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. On my right also is Vishnu Shankar Jain, lawyer. We have Indu Bhushan here, journalist, Shravan Pandey, leader of the Congress, and Abhishek Sudhir, also an advocate. So let me open this up. और सबसे पहले श्रवण पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगी. बयान तो आपने सुना ही है शिवपाल यादव का, और वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, उसको वापस लेने को भी तैयार नहीं है. अब जो INDI ब्लॉक के तमाम लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं कि हम 22 के बाद जरूर जाएंगे, हम भी राम भक्त हैं, 22 को नहीं जा रहे तो एंटी हिंदू नहीं हो गए, वो कैसे देख रहे हैं इसको और वो कैसे जस्टिफाई इसको कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अयोध्या की इस धरा पे अगर आप आए हैं तो प्रभु श्री राम का अगर उद्घोषण ना हो तो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है. सभी को जय श्री राम. आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि आज जो 22 तारीख का जो लोग आज कह रहे हैं कि 22 तारीख को निमंत्रण ठुकराया गया, वो राम विरोधी हैं. मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं वो क्या धर्म विरोधी कहलाए जाएंगे या भाजपा के विरोधी कहलाए जाएंगे? आज जिस तरीके से इस सरकार के शासनकाल में राम के नाम पे देश में 2024 की सियासत को तय किया जा रहा है, हाँ. ये क्या राम पथ के नाम पे कर्तव्य पथ तक पहुंचाया जा रहा है? लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे. नहीं, मैंने आपसे सवाल शिवपाल यादव को पूछा, बहुत स्पष्ट सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब दीजिए. देखिए, अतीत के पन्नों को अगर उठाइएगा तो उन सारे पन्नों को भी उठाना पड़ेगा. जैसे राजीव गांधी जी के शासनकाल में जिस तरीके से राम मंदिर का ताला खुलवाया गया, उन्हीं के शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया. और ये जहां पर खड़े हैं ये भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में निर्मल खत्री जी सांसद थे, उनके दौर में इसका निर्माण किया गया. भटकाने की राजनीति कर रहे हैं आप. मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं. मैं आपसे शिवपाल यादव पर पूछ रही हूँ, कभी आप राजीव गांधी पर चले जाते हैं, कभी आप बीजेपी पर चले जाते हैं. इंडिया अलायंस के साथ हमारे साथ जो उनका बयान है, जो बयान उन्होंने दिया, उस बयान पे उनका क्या व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं कहता हूं आज नीपेंद्र मिश्रा जो राम, सुनिए देखिए, हाँ. फिर मैं कहता हूं जो सरकार के शासनकाल में अगर उन्होंने गोली चलवाई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पद्मश्री देने का काम किया या मैंने देने का काम किया या कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया? पद्मश्री इन्होंने दिया. जवाब लीजिए. आपका जो मूल प्रश्न है शिवपाल यादव जी का, यह समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र है. समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे अयोध्या में ब्राह्मण सेवकों के ऊपर गोलियां चला करके सरयू का जल का लाल किया गया था, ये सब है. मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान था कि 14 मरे थे, 40 भी मर जाते तो मुझे गम नहीं था. ये उनका राम भक्तों के प्रति विचार था. और हम लगातार समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री को सुनते आ रहे हैं कि सनातन धोखा है, सनातन होता नहीं है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई उनके द्वारा. लगातार हमारे धार्मिक चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को, यहाँ तक कि भगवती श्री महालक्ष्मी जी को भी कहा गया कि 4 हाथे और 4 हाथ और 4 पैर लेके कैसे पैदा हो सकती है. उन्हें मालूम होना चाहिए भगवान अवतरित होते हैं, पैदा नहीं होते हैं. तो इस समाजवादी पार्टी का एक राम मंदिर को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के तुष्टिकरण को जो संतुष्ट करना है,
ये लगातार आक्रमण समाजवादी पार्टी तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, आपको लगता है अपीजमेंट की निश्चित रूप से अपीजमेंट है, निश्चित रूप से अपीजमेंट है। लेकिन कई लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कई लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उस बयान को। शिवपाल यादव अभी उस पर टिके और लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की आड़ में ये सब कहा जा रहा है। देखिए, वहीं आपको कल्याण सिंह जी का मुख्यमंत्री काल देखना चाहिए। शंकर राज चौहान देश के गृह मंत्री थे और उन्होंने कहा वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा, मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा, मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा। एक सरकार क्या, मैं 1 लाख सरकार कुर्बान करूंगा। यह भी एक स्टैंड था, राम सेवकों पे गोली नहीं चलाई थी। लेकिन वहीं मुलायम सिंह यादव जी को मौका मिला तुष्टीकरण को पकड़ने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए, उन्होंने अंधाधुंध राम भक्तों पे गोलियां चलाई। घरों से खींच खींच करके गोलियों से मारा गया। जो घर में लोग छुप गए थे, डर गए थे, भाग गए थे, उनको घरों से खींच करके मारा गया। सीने पे गोली मारी गई। कितनी लाशों को सरियों में निकाल के बहाया गया, कितनी लाशों को बाद निकाला, उन सबके वीडियो हम लोगों ने देखे हैं। आंखें रोती थी, खून के आंसू निकलते थे। लेकिन आज ये भव्य रूप हम राम मंदिर का जो देख रहे हैं, आज जो है चराचर विश्व में जो भगवान श्री राम की जो स्थापना हो रही है, जो गौरवशाली इतिहास त्रेता युग का था, वो योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से आज भव्य रूस की रूप हमको देखने को मिल रहा है। यह जो है आज का हमारा काम। ठीक है, विष्णु शंकर जैन, इज दिस स्मार्ट पॉलिटिक्स बाय द ऑपोजिशन? ये किस तरह की राजनीति है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम राम भक्त हैं, वी आर नॉट एंटी हिंदू जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द इनवाइट ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। और दूसरी तरफ शिवपाल यादव का बयान नहीं, कई ऐसे लोग हैं INDI ब्लॉक के जिन्होंने एंटी हिंदू या सनातन स्लैंडर वाले बयान दिए, उन पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड सम हार्ड फैक्ट्स। और इसके हार्ड फैक्ट्स क्या है? मुलायम सिंह ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि कार सेवकों को गोली चलवाई, वो तो माना ही माना, साथ ही साथ ये कहा, एंड आई कोट हिम, 22 नवंबर 2017 की रिपोर्ट है, देश की एकता के लिए और भी मारने पड़ते तो सुरक्षा बल मारते, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने फर्दर ये कहा कि मुस्लिम समाज का भरोसा जीतने के लिए कार सेवकों पे गोली चलवाना जरूरी था। इसके ऊपर FIR भी हुई, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन लड़ा गया, पर उनके ऊपर FIR नहीं दर्ज की गई। द क्वेश्चन इज दिस, 1990 में आपने कहा कि 16 कार सेवक मरे। वी फाइल्ड अ पिटिशन, आई एम टेलिंग यू अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल की और कहा 362 लोग हैं जो मरे और घायल हैं। टिल डेट they were not compensated by Mulayam Singh Yadav government till 2017, and they compensated Akhilesh Yadav Akhlaq who died in lynching. So point is this, आप जो है लोगों को कंपनसेशन या लोगों की मृत्यु भी उसकी धर्म देख के देते हैं। ये सीधे सीधे अगर सेकुलरिज्म है भी तो ये उसका सीधा सीधा मर्डर है। पॉइंट नंबर 1। इसके बाद यहां तक इनकी कहानी नहीं रुकती समाजवादी पार्टी की। इसके बाद जो यहाँ के सब लोग यहाँ पे जितने अयोध्या के बैठे हैं, इनको याद होगा कैसे यहाँ पे धर्मशाला पुलिस वालों से भर दी गई थी और पूरा ये रणनीति थी कि वहां पे कोई ना जा पाए। उस धर्मशाला को खाली करने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 की घटना से पहले 1 फरवरी 1986 को जिस ऑनरेबल जज ने ताला खुलने का ऑर्डर किया, जस्टिस KM पांडे, ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूं, जस्टिस KM पांडे का प्रमोशन रोकने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। और साथ ही साथ यहां पे भी कहानी नहीं रुकती है। जो राम जन्मभूमि के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, जहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ था जन्म स्थान, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को इंटरपोलेट किया गया और ऊपर लिखा गया मस्जिद जन्म स्थान। और इसके लिए फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई 1992 में और 2007 में उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रोड्यूस हुए। और जो पता है किसने किया था? वो उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर आजम खान साहब के टेन्योर में वो सारे इंटरपोलेशंस किए गए थे। तो जिस तरह से आप सच को दबाना चाहते थे, छुपाना चाहते थे, आज ये सारा सनातन समाज इकट्ठा होके 22 जनवरी को बताना चाहता है कि यही हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर था और यहीं पे हम उनकी स्थापना करेंगे। इंदु भूषण जी, विष्णु शंकर जैन और अवस्थी जी कह रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं थी। कार सेवकों पर गोली इसलिए चलाई गई ताकि उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार एक समुदाय विशेष को रिझाना चाहती थी। देखिए, ये गोली कांड जो है मुलायम सिंह यादव वाला, यह समय है 1990 का। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, कार सेवकों पर गोली चली, 13 मारे गए कि 364 मारे गए, इस विवाद पर मैं नहीं जाता। आज शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वह वही बयान दिया है जो जिंदा रहते मुलायम सिंह यादव देते रहे और गोली
गोली को जस्टिफाइड करते रहे। 300 मुलायम सिंह यादव ने जो गोली चलवाई, उनका ये कहना है, एक वो बयान दिए थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता। कहां मारना था परिंदे को पर? उस विवादित ढांचे पर, जिसको कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। वो बाबरी ढांचा या विवादित ढांचा 92 में गिर गया, 92 में गिर गया, और 92 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। 92 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें मुलायम सिंह की सरकार बन गई। तो इसका मतलब कि जनता ने जो 90 में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, हाँ। उसको जस्टिफाई कर दिया। जनता ने जस्टिफाई कर दिया, जनता ने, तबे तो सरकार बन गई। इस पर मैं 92 के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है, और 90 में 92 के बाद फिर 5 सरकारें गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, कल्याण सिंह जी की सरकार के साथ ही। वो बोमई साहब के जजमेंट की वजह से गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारी सरकारों को बर्खास्त किया था। सर प्लीज थोड़ा अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए। वो सरकारें गई नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को बर्खास्त किया था और कहा था सेक्युलरिज्म का वायलेशन हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 5 सरकार, भाई सुनेंगे आप हमारी बतिया, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 5 सरकारें इनकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गई थी। सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलेगा, संविधान। आप ये मत शिवपाल यादव का जो बयान है, बर्खास्त की यादव कोर्ट का जो ने, बयान है, और अगर वो यही है, इनका इंटरप्रिटेशन है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही इनका इंटरप्रिटेशन बचाने के लिए ये गोलियां चलवाई थी, ऐसा किया, उसके बाद वो यही मैं कह रहा हूं कि 92 में मुलायम सिंह यादव को फिर जनादेश मिल गया, आज ऐसे चीफ मिनिस्टर है इसी जो प्रदेश ने दे दिया। स्मारक बना रहे, उनको कंपनसेट कर रहे हैं, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ हम खड़े रहना चाहते हैं? ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं खड़ा रहना चाहते। मैं गोली को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, गोली को कंडम नहीं कर रहा हूँ। क्या पॉइंट जस्टिफाई कर रहे हैं सर, या पॉइंट आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवपाल यादव ने आज वही बयान दिया है जो मुलायम सिंह जिंदा रहते हमेशा देते रहे हैं। उनका बयान ये है कि संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए गोली चलवाई गई थी। आपका क्या स्टैंड है? और हमारा, आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड है ये, आपका क्या स्टैंड है? गोली चलाना सही था कि गलत था? हमारा स्टैंड है, शिवपाल यादव के बयान पर यह प्रतिक्रिया मान रही हैं। नहीं, हमारा आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिवपाल यादव वही कह रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव। हमारा स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद्मश्री सही दिया। नहीं, गोली चलवाना सही था कि गलत था? सही दिया। हमारा ये था कि सही होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए सर आपको, अपने शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए पद्मश्री दे करके, पद्मश्री दे करके शर्म आपको आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। पद्मश्री क्यों दिया? आज आप इस दिन आप यहाँ पे खड़े होकर इस पावन धरती पे आप उन निहत्थे कार सेवकों का जो मास मैसेकर हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सम्मानित किया गया उस चीज को। वो ये भी कह रहे हैं कि उस चीज को सम्मानित क्यों किया फिर भाजपा की सरकार ने। आलोक अवस्थी जवाब देंगे। देखिए, इन्होंने ये कहा कि ढांचा गिरने के बाद मुलायम सिंह जी को बहुमत मिला। ये गलत कह रहे हैं। ढांचा गिरने के बाद सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का था, सबसे ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। सपा और बसपा ने बेमेल गठबंधन करके सरकार बनाई थी, उनको बहुमत नहीं मिला था। दोनों दलों को मिला करके उनको बहुमत उनको लेके गए थे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल लेकर के सबसे ज्यादा वोट लेकर के आई थी। दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये सभी राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस के हैं जो ये बात कहते हैं, पहले तो बोले कि हमको बुलाया नहीं जाएगा, बुलाया नहीं गया है। जब निमंत्रण गए तो बोले हम जाएंगे नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये कौन सा राजनीतिक काम रह गया है? आज एक संविधान पीठ का निर्णय है जिसमें ये कहा गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया जाए, और उसी ट्रस्ट ने सबको इन्वाइट किया। और मैं कहना चाहता हूं ये कभी नहीं जाएंगे क्योंकि इनके मूल में राम का विरोध है। पद्मश्री वाले पर आप जवाब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार की बात करता हूं। ढांचा गिरने के अगले दिन लोकसभा के अंदर नरसिम्हा राव ने कहा कि बाबरी मस्जिद मेरे दिल में जिंदा है, हम बनाएंगे। यह कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था। मनमोहन सिंह की सरकार के समय कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था
कि जो है वहां पर भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड था। तीसरा उनके नेता राहुल गांधी जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका ये बयान था कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यह सनातन के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड है। तो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, इनके बयान यही दर्शाते हैं। पद्मश्री पर आपने जवाब नहीं दिया, मैं लौटूंगी और फिर से सवाल आपसे पूछूंगी। मीनवाइल आई वांट टू ब्रिंग इन अभिषेक सुधीर। अभिषेक सुधीर, यू आर एन एडवोकेट, कानून पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर आप ज्यादा बेहतर अपनी बात रख पाएंगे। What do you think is the sense of these statements that are being made now? शिवपाल यादव saying कि जो हुआ वो सही हुआ, and they are all quoting मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया। देखिए, ये सिर्फ राजनीति है। इसी मुलायम सिंह यादव को मोदी जी ने बहुत सम्मानित किया था जब उनकी मृत्यु हुई थी पिछले साल। 5 या 6 बार उन्होंने ट्वीट किया था जब उनकी डेथ हुई थी। द सेम मुलायम सिंह यादव, उनको पद्मश्री दिया गया था और मोदी जी ने उनकी काफी तारीफ भी की है। तो ये राजनीति है। आप देखिए, उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा जी भी थे सरकार में उस टाइम, अभी वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन कमेटी में है। तो ये राजनीति की बात है। सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात रखने दीजिए। हाँ, बात ये है कि राजनीति में जो है, जो आज आपका दोस्त है, कल वो आपका शत्रु बन जाएगा। ये राजनीति है। अब यहाँ जब मंदिर बन चुका है, अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, ये नेगेटिव और सकारात्मक बात, हम पॉजिटिव बातों पे चलते हैं ना। आप राजनीति नहीं करना चाहते, अच्छी बात है। अरे उसी नरसिम्हा राव ने क्या किया जब बाबरी मस्जिद गिरा था? उन्होंने तो रोका नहीं था। 1989 की बात करते हैं, जब शिलान्यास हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, दोनों कांग्रेस पार्टी से जाके अशोक सिंघल से ये इसी अयोध्या में मुलाकात हुई और अशोक सिंघल के साथ इनकी समझौता थी कि राम मंदिर, राम जन्मभूमि में शिलान्यास होगा। हर पार्टी का भूमिका रही है इस मंदिर बनने में। बात ये अलग है कि कांग्रेस पार्टी अब क्रेडिट लेना नहीं चाहती है। अरे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की डर है, मैं कह रहा हूं। पर अगर राजीव गांधी ने शिलान्यास होने नहीं दिया था, अगर नरसिम्हा राव ने बाबरी को गिराने नहीं दिया था, तो आज मंदिर कैसे बनता? तो आप भी क्रेडिट तो उसी तरफ दे ही रहे ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए राजनीति क्यों कर रहे हैं? श्रवण जी, मैं आपको इस पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्रेडिट लेने की कोशिश आधी अधूरी तो हुई है, क्योंकि कर्नाटक में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अरे हम सब हिंदू ही तो हैं, मेरा नाम देखिए, मेरे नाम का मतलब देखिए। जो दूसरे मंत्री हैं वो कहते हैं कि ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। लेकिन हाई कमांड जो है वो इनवाइट को रिजेक्ट कर देता है, प्राण प्रतिष्ठा में आना नहीं चाह रहा। तो ये आधे अधूरे तरीके से क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अगर आपकी भूमिका रही है तो फ्रंट फुट पर खेलिए, आप कहिए हाँ हम भी क्रेडिट लेंगे, हमने भी काम किया। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम राम के नाम पे सियासत नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा हमारे तो कर्नाटक में आप विशेष पूजा क्यों करवा रहे हैं? क्या आप राम के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत कर्नाटक में नहीं कर रहे हैं? क्यों आप वहां पर पूरे राज्य में विशेष पूजा करवा रहे हैं? हमारे साथी प्रवक्ता ने, बीजेपी ने कहा कि राम काल्पनिक, जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैं फिर कहता हूं, ये उन्हीं सहयोगी दल के पार्टियों के साथ है जिनके नेता ने राम को दशरथ का पुत्र मानने से इनकार कर दिया, आज उन्हीं के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। क्या ये शोभा देता है? ये राम के कितने बड़े हितैषी हैं ये देश की जनता जानती है। राम के नाम पे देश की जनता का जेब काटने का काम किया, बहुत सारे वादे दिए थे। ये कह रहे हैं हम, सुनिए, देखिए मैंने नहीं इंटरप्ट किया, आप मत करिए, मेरा भी सुनिए। आज जिस तरीके से देश में हालात हैं, क्या उन मुद्दों पे भी बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राम को कौन ला सकता है? क्या इस पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति का सामर्थ्य है जो कह सकता है मैं राम को ला सकता हूं? राम सबके हैं, राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा वहां पोस्टर लगा हुआ है मोदी की गारंटी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे साथ यहाँ ऑडियंस मौजूद है वो भी डिबेट में शामिल होना चाहती है। मैं आपसे सवाल करूंगी, आप हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। एक मिनट, क्या आपको लगता है कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए? क्या इसका क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए? आलोक अवस्थी जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने न्योता सभी दलों को भेजा, राहुल गांधी की फैमिली को भेजा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आएंगे, तिरस्कार कर दिया। लेकिन बिन बुलाए जी के पास सोनिया गांधी, देखिए झूठ मत बोलिए, राहुल जी के पास आपने कहा मैं समझता का परिचय देंगे, अभी आपने कहा समझता राहुल जी के पास आमंत्रण नहीं गया है। अगर राहुल गांधी के पास, मेरी बात पूरी करने दीजिए, जरा बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उससे कितने दुखी हैं।
इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था राजा दशरथ के महल में 70,000 कमरे थे, किस कमरे में रामचंद्र पैदा हुए थे इन्हें कैसे पता है। इस तरह के इनके बयान थे। राहुल गांधी का परिवार, राहुल गांधी बिन बुलाए बाबर की मजार में दूसरे देश में जाकर सजदा करने चले जाते हैं। राहुल गांधी का परिवार को यहाँ बुलाया जाता है इज्जत से, तो तिरस्कार करके भगवान श्री राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। वहीं पर मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्या आपके दल ने यह नहीं कहा था ऑफिशियली लिख करके कि राम काल्पनिक है, राम में आपका भरोसा नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह संविधान पीठ का निर्णय कांग्रेस की सरकार के समय पर हुआ होता तो कांग्रेस की सरकार इसको शाहबानों को जैसे न्याय नहीं मिला था उस निर्णय को बदल करके, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके लोकसभा में नया कानून ले आए थे और राम मंदिर बनने के आदेश को भी लोकसभा में जाकर के कैंसिल करते हैं। ये कांग्रेस का जो विलाप है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस रामद्रोही रही है और वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पक्ष दिखाई पड़ रहा है। एक मिनट, क्योंकि आपने कहा कि इनवाइट टर्न डाउन कर दिया, निमंत्रण भेजा गया था कांग्रेस हाईकमांड को, लेकिन वो नहीं आ रहे। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, कहा कि जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, पॉलिटिकल है, वो नहीं आएंगे। शंकराचार्य भी नहीं आ रहे। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि तो क्या आप ये भी कहेंगे कि शंकराचार्यों ने भी अपमान किया है इन्विटेशन का, भगवान राम का? मैं एक तथ्य रख देता हूं, शंकराचार्य जी का कितना सम्मान कांग्रेस ने किया था। कांची कोटि के शंकराचार्य थे जयेंद्र सरस्वती जी, उनको घसीट करके कांग्रेस की सरकार के समय पे उठाकर जेल में बंद किया था। महीनों वो जेल में बंद रहे, 10 साल बाद उनको जाके न्याय मिला था। शंकराचार्य पीठ के और शंकराचार्य जी के बारे में कांग्रेस का ये स्टैंड था कि जयेंद्र सरस्वती जी को, आपको याद होगा, कर्नाटक के अंदर जेल के अंदर घसीट करके बंद किया गया, जेल के अंदर बंद किया गया था। ये शंकराचार्य का वो है। दूसरी बात, रामलला का जहां पर इस समय जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रोक्त विधि से हो रही है, शास्त्रीय पद्धति से हो रही है, संतों के द्वारा वो तिथि निकाली गई है और वहां पर विग्रह महत्वपूर्ण है। वहां पर जो है उसकी छत कैसी होगी, परकोटा कैसे होगा नहीं है, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और विग्रह वहां विराजमान। 22 को करोड़ों राम भक्त नहीं आएंगे दर्शन करने, सिर्फ वीआईपी जो मोदी जी के द्वारा आमंत्रण दिया गया है। क्या राम मंदिर के यहाँ आमंत्रण जरूरी है? भगवान श्री राम के प्रति इनकी घृणा है। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो राम की प्रतिष्ठा को चैलेंज कर रही है, भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना को चैलेंज कर रहे हैं, दुख हो रहा है। एक मिनट, तो कांग्रेस के हाईकमांड को भी तो निमंत्रण गया था। अगर आपका हाईकमांड निमंत्रण में आने को तैयार नहीं है तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? और क्या जो लोग आ रहे हैं वो राम भक्त नहीं है? मकर संक्रांति के दिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए, उन्होंने रामलला का दर्शन किया। पार्टी का झंडा लेके क्यों आए? नहीं, हमें राम मंदिर, अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो पार्टी का झंडा क्यों लेकर आए? कार्यकर्ता जो है उनकी आस्था क्या है, को चीजें झंडा लेके चले। उसके साथ जिस तरीके से लोगों ने दुर्व्यवहार, मैं भी उस समय था, जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग जो अनोखेलाल तिवारी जी थे उनके गले को दबा लिया गया था, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी कैसा देश बनाना? वहां जितने लोग मौजूद थे सारे बीजेपी के थे। भगवान श्री राम सबके हैं। वहाँ जितने लोग मौजूद थे क्या वो सारे बीजेपी के थे? नहीं, देखिए मैं कहता हूँ जो भी हुआ, नहीं तो ये आपको जानकारी नहीं है, तो आपको ये जानकारी नहीं है कि वहाँ जो लोग थे वो बीजेपी के थे या नहीं, तो आप आरोप बीजेपी पर कैसे लगा? उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इस पार्टी पर लगता है कि इतने साल आपकी सरकार रही, आपने कभी कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं किया राम मंदिर बनाने की दिशा में, और आपने जगह जगह मौके मौके पर रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए, अड़चने डाली। ये कितना सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, मैं अभी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे जो बड़े भाई हैं वो कह रहे थे कि आज बड़ा खुशी का माहौल है, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, तो पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। सर, काशी कब बनेगा, इस पे क्या स्टैंड है? सर, ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू कब रुकेगा, इस पे क्या स्टैंड है? सर, मथुरा कब मुक्त होगी, इस पे क्या स्टैंड है? सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब खत्म होगा, इस पे क्या स्टैंड है? सर, वक्फ एक्ट 1995 कब खत्म होगा, इस पे क्या स्टैंड है? और जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सिर्फ इसमें रोड़े डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की फाइनल हियरिंग आ गई, कपिल सिब्बल ने कहा कि इसको 2019 के चुनाव के बाद सुन लीजिए। इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का नक्शा 5 जजेस के सामने फाड़ के फेंकने का काम किया। कोई और होता तो जेल के अंदर होता। इसके बाद उन्होंने कहा कि रामायण जो है वो काल्पनिक है, काव्य है, सिर्फ भगवान राम नहीं, रामायण भी एक स्टोरी है, एक मिथ है, इसका सरोकार नहीं है कोई रियलिटी से। और साथ ही साथ इतना नहीं,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके इस पूरे देश पे एक दंश लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, सच्चर कमेटी पे क्या स्टैंड है बताएं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पे क्या स्टैंड है। पॉजिटिव बातें करते हैं आज सारे लोग पॉजिटिव बातें करते हैं। जवाब लेते हैं, जवाब अभिषेक सुधी। मैं बताना चाहता हूं, काशी और मथुरा में भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। मैं पूरा आपका सपोर्ट करता हूं, पर मंदिर वहां क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि एक एक्ट है, आपने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं जनता से बात कर रहा हूं, अब भाई इंटरप्ट मत गवर्नमेंट करो। लाई है। मैं किस गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी। अब मोदी जी और भाजपा का पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, आप हटा दीजिए उसको, वो एक्ट हटा दीजिए ना। लाए क्यों? रिपील ये द आपका एक्ट। माइंड था भाई, आप लाए Swati, क्यों? ask them मैं why are बताना they not चाहता हूं, repealing places of the worship act? act में Question लिखा should go to क्या the है? BJP. Yes, it should go to the It should go to BJP the BJP, spokesperson. आलोक अवस्थी। पूर्ण बहुमत है, एक्ट हटाइए, और मंदिर अगर विष्णु बनाइए। में गलत नहीं हूं तो सुप्रीम अरे कोर्ट आप ने भी चलिए, केंद्र से मैं पूछा चलता हूं था। आपके साथ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से उनका स्टैंड मांगा था कि आपका क्या स्टैंड है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। भले कांग्रेस लेकर आई हो, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, आप ही की सरकार में राम मंदिर बन रहा है, बाकी मंदिरों का क्या होगा? ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं आप बाकी मंदिर बना रहे हैं? जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उसके स्टैंड रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसके सारे रास्ते हम प्रशस्त करेंगे। हमने किया, सारे कील कांटे हटाए। मोदी जी, योगी जी की सरकार ना होती तो ये आज भी जो है अटक भटक को लटक रहा होता कोर्ट के अंदर, जैसा कांग्रेस ने पहले किया। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर में हम न्याय देंगे, हमने उसको पूरा किया। कांग्रेस के बनाए हुए एक्ट पे आइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से स्टैंड मांगा। और देखिए, हर जो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसमें सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? अभिषेक सुधीर कह रहे हैं हटा दीजिए, सरकार है आपकी। मैं जितना कहूंगा, जितना कोड़ और खाल कांग्रेस ने फैलाया है, हम उसको धीमे धीमे साफ कर रहे हैं। तमाम गैर कानूनी कानूनों को हमने खत्म किया है, जनता के हित के कानूनों को हम लाए हैं, और आगे भी जो भी कानून जनता के हित में नहीं है उनको हम ठीक करना चाहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, पहले मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण की ऐसी क्या मजबूरी थी? तुष्टीकरण की ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों लाया गया? मैं पूछना चाहता हूँ, तुष्टीकरण की ऐसी क्या मजबूरी थी? अभी बहुमत आपके पास है, हटा दीजिए। एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज का जो डिबेट है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। आज की जो डिबेट है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन तीनों मान्यवरों ने जो बात कही है इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये बात आज, सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आज सरयू की तट से ये बात कह के जा रहा हूं कि जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये क्षमता है कि वो पार्लियामेंट में सिंगोल स्थापित कर सकता है, जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये क्षमता है कि एक्ट छोड़िए 370 समाप्त कर दिया, तो प्लेसेस ऑफ, एक मिनट, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समाप्त होगा तब आप लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मत करिएगा। 370 जब समाप्त हुआ था, ये इनका दोहरा चरित्र है, जब 370 समाप्त हुआ था तब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि 370 को वापस लाइए। आज चुनौती दे रहे हैं, जब एक्ट समाप्त होगा तो उसके बाद ये पहुंच जाएंगे कि इसको रिवाइव करिए, और ये सेक्युलरिज्म का बेसिक जीता जाता उदाहरण है। ठीक है, जो जवाब बीजेपी से आना चाहिए वो विष्णु जैन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सरकार जब हटाएगी, जब ये सरकार हटाएगी तो ऑपोजिशन इसको चैलेंज नहीं करेगा। फिर विष्णु जैन लड़ रहे हैं ना, विष्णु जैन काशी और मथुरा के लिए लड़ रहे हैं, मैं मानता हूं, पर विष्णु भाई अगर भाजपा सरकार वो एक्ट हटा देती है तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। मैं जवाब दे दूं, आप लड़ाई जीत जाएंगे। सर आप लॉयर, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं एक मिनट, 12 सितंबर 2022 ज्ञान व्यापी के केस में कोर्ट होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सर प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई 2023 को ये बात कह चुकी है कि यहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होता। मथुरा के केस में 19 मई एक्ट, क्योंकि बाकी केसेस में लागू होता है, और जगह कुतुब मीनार में लागू हो रहा है, ताजमहल में लागू हो रहा है, बहुत सारा अदीना मस्जिद है बंगाल में, वहां लागू हो रहा है। तो ताजमहल भी गिरा दो, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मंदिर बनाएंगे, बनाएंगे बिल्कुल। आप देखिए, ये सटायर वाली बात है, आप ये नहीं चाहते हैं। आप ये देखिए, ये इनका दोगला स्टैंड है, ये दोगला स्टैंड है, इनको करेक्ट फैक्ट्स नहीं पता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इंदु भूषण जी, एक मिनट, आलोक अवस्थी कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के बयान दे रहा है वो राम मंदिर बनने से दुखी है। एक क्लियर स्टैंड कोई भी पार्टी ऑपोजिशन में ले नहीं रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा है, क्योंकि हाईकमांड किसी का नहीं आ रहा है और कोई भी अपने लोकल नेताओं को जाने से रोक नहीं रहा है।
नहीं, क्लियर स्टैंड है। अब पता नहीं आप भाजपा की स्टैंड को ही खाली स्टैंड मान रही हैं। नहीं, मैंने आपसे आपका स्टैंड पूछा है कि कांग्रेस आपका भी के भाजपा का स्टैंड स्टैंड को है क्या? स्टैंड नहीं मान रही हैं। शाहनवाज हुसैन का बयान है लोकसभा का, कहिए तो अभी हम सुनावें। 92 का जब ढांचा गिरा दिया गया था, लोकसभा में हल्ला किया विपक्ष ने कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। शाहनवाज हुसैन का बयान है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नहीं गिरी, यह सन 49 में गिरी। और अध्यक्ष जी, कांग्रेस बताए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, फिर खुद ही उन्होंने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सन 49 में जब बाबरी मस्जिद तो उसी दिन खत्म हो गई जब उसमें रामलला प्रकट हुए, और तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और ठीक है, हमने सन 86 से लेकर के और आज तक सक्रिय पत्रकारिता कर रहा हूं। हमने रामलला को उस ढांचे में विराजमान दर्शन किए हैं। हमने 92 में गिर गया तो हमने टेंट में दर्शन किए हैं जी। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो अस्थाई मंदिर में आज दर्शन कर रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी के बाद हम नए राम मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे जी। ठीक। हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस के शासन में 67 एकड़ जमीन दे करके शिलान्यास कराया गया, उसको हम भूल जाएं, उसको हम कह दें कि नहीं। अब कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है, समाजवादी क्या स्टैंड ले रही है। समाजवादी पार्टी तो आपके साथ है, सरकार में भी रही है भाई साहब के, मायावती इनके साथ सरकार में भी रही हैं। नहीं, तो मैं तो आपसे ये यही तो ज्यादा पूछ रही बता हूँ। पाएंगे कि नहीं, बसपा का सक्रिय राजनीति का आपने सक्रिय पत्रकारिता करते हुए हमेशा कवरेज किया है। आज का ऑपोजिशन जो है और उसने जो स्टैंड लिया है, कि आपको नहीं लग रहा कि एक तरफ वो बैलेंस बना के चल रहा है कि ये वोट बैंक भी ना छूट जाए, वो वोट बैंक भी ना छूट जाए। जवाब सुनिए, 40 साल में 30 साल आंदोलन रहा है, 30 साल 35 साल लगभग राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन रहा है। पहला आंदोलन जो हमने कवर किया है, हमने देखा है, वह राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आंदोलन था। और हमारी ही तरह से एक पत्रकार थे और वकील भी थे, उमेश पांडे जी। उमेश पांडे की रिट पर और उनके प्रयास पर राम जन्मभूमि का ताला खुला। मैं जो समझ पाता हूं एक पत्रकार के तौर पर, इस 35 साल इस राम जन्मभूमि आंदोलन ने भाजपा में प्राण प्रतिष्ठा की। ये 2 सीट से भाजपा आज बहुमत, प्रचंड बहुमत में है। और अब वही भाजपा, वही संघ, वही विश्व हिंदू परिषद, आप भी जान रही हैं कि ये पूरा आयोजन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का खुले तौर पर है। अच्छा, ये पॉलिटिकल इवेंट है, आप भी यही कह रहे हैं? आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल आरएसएस बीजेपी का। मुझे सबकी राय लेनी है, वक्त भी कम बचा है। हमारी बतिया पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, जल्दी प्लीज। अब ये अवसर आ गया है कि रामलला भाजपा में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 2024 में। जवाब दीजिए, ये आपका इवेंट है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, आपको उसको देख के खुशी होती है या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। सीधा आपसे ज्यादा ये जनता कर रही है। हमारी ये पोस्ट है कि रामलला 22 को हमारे घर आएंगे, रामलला 22 को हमारे घर आएंगे, निज निवास पर आएंगे। 1000 व्यूज का है। ठीक है, मेरा एक सवाल है श्रवण जी आपसे, मेरा एक सवाल है श्रवण जी आपसे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था कि क्लियर स्टैंड ऑपोजिशन क्यों नहीं ले रहा। एक मिनट, क्या ये ऐसा विषय बन गया है ऑपोजिशन के लिए कि निगलते भी नहीं बन रहा है और उगलते भी नहीं बन रहा है, खुल करके विरोध भी नहीं कर पा रहे और खुल करके सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे? देखिए, राम का विरोध करना किसी में ताकत नहीं है जो राम का विरोध करे। हम राम के अनुयायी हैं, तो हम राम के, क्यों नहीं सुनिए, आए हम राम invitation के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। राम का लोकतंत्र क्या था? राम का लोकतंत्र था श्रेष्ठता का आचरण, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र क्या है? एक मिनट, प्राण प्रतिष्ठा किसकी हो रही है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा बताइए, मैं वही तो कहता हूँ। किसकी हो रही है प्राण प्रतिष्ठा? 2024 में क्या भाजपा किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है? मंदिर में किसकी मूर्ति रखी? बिल्कुल नहीं, रामलला की मूर्ति। रामलला की मूर्ति है। नहीं, एक मिनट, रामलला की मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा किसकी हो रही? रामलला की हो रही है। लेकिन इससे पहले तो ये इवेंट भी रामलला का है।
नहीं रामलला का तो इसे और अगर आप राम भक्त इसमें- हैं, नहीं, अगर आप आमंत्रण राम की भक्त हैं, क्या तो जरूरत प्राण है? प्रतिष्ठा में इसमें क्यों? बीजेपी के आमंत्रण की क्या जरूरत है? ये जितने भक्त हैं, ये राम भक्त हैं, ये बिना बुलाए आए हैं। 22 को क्यों बुला रहे हैं? ठीक है, वो? एक मिनट, फिर 22 को फिर क्यों राम बुला रहे भक्तों हैं? से सवाल करते हैं। एक मिनट, तो जितने राम भक्त यहाँ पर है, जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, क्या कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण स्वीकार करके प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अलग अलग मत हैं, अलग अलग मत हैं, जवाब दीजिए। ये बात हुई जो राम का नहीं, किसी काम वो का नहीं। किसी काम का नहीं, तो कांग्रेस राम की नहीं है, इसीलिए हाशिए पर पड़ी हुई है और आगे फिर कांग्रेस हाशिए पर जाएगी, यह तय बात है। ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। हमारे राम हमारे भक्त हैं। जो लोग हैं वो सब जय सिया राम बोलते हैं, लेकिन जय सिया राम के नाम पे देश की जनता को बेरोजगार कर देना, जय श्री राम के नाम पे तमाम उन वायदों को भूल जाना, ये अपने उन नहीं, क्योंकि आप चुनाव से, क्योंकि इंदु भूषण जी ने चुनाव का जिक्र किया था, इंदु भूषण जी ने चुनाव का जिक्र किया था, इसीलिए विष्णु शंकर जैन एक बात बताइए विष्णु शंकर जैन, अगर चुनाव से सबको आप रिलेट करें, राम मंदिर मूवमेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से लेकर के आज राम मंदिर बन जाने तक, तो मैंडेट किसके पास है? फिर जनता क्या चाह रही है, किसके मन में क्या है? देखिए, सारी जनता यही चाहती है कि काशी भी मुक्त हो, मथुरा भी मुक्त हो और भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ पे बने, ये सारे लोग चाहते हैं। चलिए, और साथ ही साथ ये सब लोग यहाँ चाहते हैं I am wrapping up the national debate. The Bharatiya Janata Party questioning opposition stand, while the opposition at this moment seems very hesitant, the entire opposition very hesitant in openly slamming those who are making anti-Hindu statements, who are questioning the Lord himself now. Thank you very much, gentlemen.